Good morning, my dear students, and welcome to today's video lesson. Students, the COVID 19 situation is a bit serious these days, and I hope all of you are taking the necessary precautions which you must. While you are at your home, please stay in your homes only, don't go out without any purpose. Okay, don't roam here and there, and encourage others also to do the same. If we all will come together, then only we'll be able to defeat this pandemic and be safe. Okay, so we should put in maximum efforts to ensure our safety and the safety of others. So please take care of yourself. Now, dear students, once again we'll be reading In the Kingdom of Fools. Okay, a very interesting story, a very interesting narrative we have. But before we explore that, I would like to remind you all of a key responsibility that I see some of you are forgetting. Dear students, the month of July, it is over. Okay, it is over, and now we have the month of August only. In the month of August, we'll be finishing our syllabus, as well as we will be revising. Okay, we'll be beginning our revision as well, because from the month of September, maybe in the first week or the second week of September, your exams will be there. Okay, so for that, to prepare for your exams, you have to work very hard. I'm telling you this again and again so that you become serious about your studies and you study regularly. Studying, I know you people are studying, okay, but how you are studying? You are studying like on alternate days. Okay, you are thinking that, okay, I'll study English today, maths tomorrow, science today, like this. You're not being regular. Please study regularly about all your subjects every day. Okay, study regularly. I'm repeating it because this is the best you can do right now. If you are studying regularly, then you won't face any problems. Otherwise, even exams will become as fearsome like the pandemic COVID 19. Okay, so don't make exams fearsome. Be regular in your studies and do your best. Okay, so now let's come to our chapter In the Kingdom of Fools. What has happened up to now? That there is a strange kingdom of fools, okay, where day is night, night is day. There is, in that kingdom, a guru and his disciple came, and they both found the city very strange. Finding that this kingdom is ruled by fools, the guru, he left that city. Okay, but the disciple, he chose to stay because he could eat as much food as he wants. Then what happens in that city? There was a thief who was trying to steal. A wall falls on him and he dies. So then the king, he starts judging that case, and what he does is he tries to find out the culprit, real culprit. Then firstly, rich merchant came. Then rich merchant put the blame on the bricklayer that he didn't build the wall properly. The bricklayer said, I was distracted because of a dancing girl. The dancing girl, she fixed the blame on the goldsmith, and the goldsmith fixed the blame on the rich merchant. Okay, so the blame game, it got over. The justice, it came into full circle, and the blame was finally fixed upon the rich merchant. Okay, so he pleaded before the court that
It was not me who gave order for those jewelry, okay, for those ornaments, for the jewelry. It was my father. Now let's read and find out what the king has to say. Okay, page number 23 everyone of your book Moments, okay, which is a supplementary reader. Please take it out. So, it wasn't me but my father who ordered the jewelry. He is dead, I am innocent. But the king consulted his minister and ruled decisively. So king ने consult किया, consult means discuss किया अपने ministers के साथ, okay, and he ruled decisively. Decisively means he gave a final decision, okay. So उसने rule किया, it's true your father is the true murderer, okay. So उसने एग्री किया कि हाँ जो रियल ब्लेम है वो किसका है, फादर का. He is dead, but somebody must be punished in his place. Okay, so now उसने हालांकि एग्री किया है कि जो ब्लेम है वो रिच मर्चेंट के फादर का है, लेकिन उसे किसी न किसी को तो पनिश करना ही है. ओके, वाई उसकी ऐसी थॉट प्रोसेस क्यों है? अगेन बिकॉज ही इज अ fool. He is a fool, that's why he thinks like this. You have inherited everything from that criminal father of yours. Inherited means विरासत में मिलना, okay? उसको inherit हुआ है, उसको जो भी उसके फादर के पास था, तो उसके मरने के बाद ऑब्वियसली जो है उसको मिला है, रिच मर्चेंट को मिला है. His riches as well as his sins. His riches means जो उसकी wealth थी, as well as his sins means bad deeds, जो उसके पाप थे. Okay, I knew at once, मैं पहले ही जानता था, okay, मुझे एक बारी में ही पता चल गया था. Even when I first set eyes on you, तो जैसे मैंने तुम्हारे को पहली बार देखा था, that you were at the root of this horrible crime. At the root of this horrible crime means कि तुम इसकी जड़ में हो, तुम इसके बेसिस में हो. सारा माजरा जो भी है, जो इशू है, वो तुम्हारी वजह से ही है. You must die. उसने कह दिया कि भाई you must die. उसने डिक्लेयर कर दिया डिसाइसिवली, फाइनल डिसीजन उसने सुना दिया कि तुम्हें तो मरना ही होगा. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. So उसने ऑर्डर क्या कर दिया एक और, कि एक स्टेक क्या होता है, सूली, जिसपे एग्जीक्यूशन करते हैं, जिसपे उसे या फांसी देते हैं या फिर उसको बिहेड करते. बिहेड मीन्स उसका सर काटना. ओके, सो उसने वो स्टेक बनवाई और स्टेक बनवा के उसके को मार देने का ऑर्डर दे दिया. As the servants sharpened the stakes, तो जो वो सूली थी जिसपे उसने मारना था, उसको वो शार्प कर रहे थे. ओके, उसको तेज कर रहे थे. क्यों? ताकि वो आराम से मर जाए. ओके, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल. इम्पेलिंग क्या होता है? कि उसको काटना. ओके, उसको काटने के लिए, उसके बॉडी से वो पार्ट रिमूव करने के लिए, जैसे सर को ही रिमूव करना है, तो जैसे उन्होंने उसको देखा कि वो इम्पेलिंग करने के लिए, उसके सर को रिमूव करने के लिए उन्होंने उसे रेडी किया. इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन. सो मिनिस्टर को ये पता चला कि जो रिच मर्चेंट है वो बहुत ही ज्यादा पतला है और वो इस स्टेक पे, इस नई सूली पे नहीं मरेगा. ओके, and that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. So जो ये stake है, इस पे properly वो नहीं मर पाएगा, उसे नहीं मारा जा सकता. Okay, he appealed to the king's common sense. Now see, in a story of fools there is common sense also. जो किंग है उसको कहा गया है कॉमन सेंस यूज करने के लिए. डू यू थिंक इट्स पॉसिबल
कि किंग जो है वो अपनी कॉमन सेंस यूज कर पाएगा? डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? नो, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। किंग जो है वो अपनी कॉमन सेंस नहीं यूज कर पाएगा। ओके, लेकिन किंग को लगता है कि उसके पास कॉमन सेंस है तो वो यूज भी कर लेगा, बिकॉज वो तो एक फूल है, वो बेवकूफ है, राइट? वो एक पागल है, लेकिन उसे लगता है कि वो पागल नहीं है। ओके, द किंग टू वरीड अबाउट इट। अब किंग को भी इस चीज की टेंशन होगी, उसको भी वरी हो गई इस चीज की कि ये क्या हो रहा है। ओके, ये भाई अब कैसे मारेंगे, ये जो थिन है बेचारा, इसको कैसे वो करेंगे। What shall we do? He said. When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. So उसने पहले तो रिच मर्चेंट को अपने दिमाग से क्रिमिनल डिक्लेयर किया। अब जब उसे पता चल रहा कि रिच मर्चेंट जो है वो आराम से नहीं मरेगा, सो उसने क्या आइडिया लगाया कि चलो ये पतला है ना, तो अब किसी मोटे को पकड़ते हैं। ओके, सो अगेन अनदर साइन ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ आवर ग्रेट किंग। ओके, सो the servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. So जितने भी servants थे उनको कहा कि भाई अब तुम जाओ ढूंढो कोई ऐसा आदमी लाओ जो इस स्टेक में फिट हो जाएगा। And their eyes fell on the disciple. Now here disciple, he has come back to this story. Okay, अभी तक वो खा पी रहा था, अच्छे से enjoy कर रहा था, लेकिन अब वो स्टोरी में जो है वापस आ गया है। Who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. So वो उसकी डाइट वही चल रही थी। ओके, वो जैसे गुरु उसको छोड़ के गया था वो वैसे ही था, और वो खाने पीने के अपने आप को खुश किए हुए था। ओके, What have I done wrong? I am innocent. सो अब पूछ रहा है डिसिपल जो है वो पूछ रहा है कि भाई मेरी क्या गलती है, मैं तो एक सन्यासी हूं, मैं आई एम इनोसेंट, मैंने कोई क्राइम किया ही नहीं है। ही क्राइड मीन्स कि वो जोर से बोला, वो रुआ से होके सैड होके वो उसने जोर से बोला। दैट मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है, बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक। डिक्री क्या होती है? डिक्री इट्स एन ऑर्डर। सो रॉयल ऑर्डर था कि भाई एक ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ जो इस स्टेक में फिट हो जाए, जो इतना मोटा हो कि स्टेक में फिट हो जाए। They said and carried him to the place of execution. So जहां पे सजाए मौत देने जहां पे वो मारना था उसको, उस जगह पर ले गए। He remembered his wise guru's words. अब उसको जो है अपने गुरु के वर्ड्स, जो उसके गुरु ने उसको कहा था, वो याद आ रहा है। This is a city of fools. You don't know what they will do next. तो तुम्हें नहीं पता वो नेक्स्ट क्या करेंगे। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. So जब वो अपनी डेथ का वेट कर रहा था, उसने क्या किया कि अपने गुरु को अपने दिल में प्रे करा, प्रार्थना करी उसने। Asking him to hear his cry wherever he was. तो उसने प्रार्थना करी कि जो उसके गुरु हैं वो उसकी जो पुकार है वो सुन ले, चाहे वो कहीं भी हो। The guru saw everything in a vision. Vision means कि उसको दिखाई दिया। अब आप कह सकते हैं योगिक पावर से ये कहा जाता है कि लोगों को दिखता है, कुछ लोगों को फ्यूचर का विजन होता है, कुछ लोगों को पास्ट दिखता है, कुछ लोगों को अभी रिसेंटली आई टेल यू अ ईयर बैक देयर वाज अ न्यूज स्टोरी कि एक सेज है, उसको एक विजन आया है कि एक मंदिर है, उसके कंपाउंड में 400-500 किलो सोना वो दबा हुआ है। ओके, दैट काइंड ऑफ विजन वी आर टॉकिंग अबाउट। ड्रीम तो सपना हो जाता है, विजन क्या होता है कि कुछ दिखाई देना कि हाँ वो चीज वहां है। ओके,
सो विजन इज लिटिल डिफरेंट देन अ ड्रीम. ओके, सो हालांकि ऐसा नहीं होता, ये फिक्शन है. ओके, दिस इज जस्ट थिंकिंग, बट वी आर ह्यूमंस एंड ह्यूमंस आर क्वाइट स्ट्रेंज. वी बिहेव इन स्ट्रेंज वेज. अबाउट द न्यूज स्टोरी विच आई एम टेलिंग यू, वहां पे एक्चुअली उत्तर प्रदेश में कहीं था वो न्यूज स्टोरी, और वहां पे एक्चुअली में डिगिंग हुई ये देखने के लिए कि वहां पे सच में सोना है या नहीं. ओके, सो अब विजन, खैर हमारी जो स्टोरी है इसमें जो गुरु है उसको विजन में दिख गई है अपने जो डिसिपल था, जो उसका चेला था, उसकी सिचुएशन क्या है. ओके, द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन. ही हैड मैजिक पावर्स. सो उसके पास मैजिकल पावर्स थी. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. So वो दूर तक देख सकता था, वो फ्यूचर भी देख सकता था, वो प्रेजेंट भी देख सकता था, पास्ट भी देख सकता था, वो सब कुछ देख सकता था. He arrived at once to save his disciple. So वो एकदम से ही आ गया, जैसे उसको पता चला वो तभी आ गया अपने डिसिपल को, अपने फॉलोवर को सेव करने. Who had got himself into such a scrape through love of food. So किसको सेव करने आएंगे? उस डिसिपल को जिसने खुद को एक स्क्रेप, क्या होता है? प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. ओके, एक मुश्किल में फंसा लिया था. Why? क्योंकि उसे खाने से प्यार था. ओके, I am telling you a question which you people can attempt if you want. It's related to writing an article or it can be related to writing a short story. What's the question? एक statement है इंग्लिश में. Okay, live to eat और eat to live. Okay, इसका मीनिंग क्या है कि खाने के लिए जिए या जीने के लिए खाएं. Okay, अगर आप लिविंग टू ईट की बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है कि जो फूड है उसको एंजॉय करना, जंक फूड खाना, सब कुछ खाना. बट इज दैट गुड? That's not at all good for your health. Okay, so you should eat to live. Okay, जीने के लिए खाओ, बैलेंस डाइट खाओ, वो खाइए जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है. Okay, so on this topic you can either write a short story or you can write an article. Okay, statement यही रहेगी, live to eat और eat to live. Okay, इसको प्रेजेंट करना है आपने. इसको प्रेजेंट कैसे करना है? गिव इट अ थॉट, नोट्स बना लो. ओके, सिर्फ नोट्स भी अगर आप बना लो इस टॉपिक के ऊपर तो सफिशिएंट है. ओके, सो जब ऐसे कुछ पॉइंट्स आते हैं, ये राइटिंग इंप्रूव करने के लिए ये टॉपिक्स, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. ओके, सो मूविंग ऑन. सो वो जो डिसिपल था वो किस वजह से प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में था? प्रॉब्लम में था बिकॉज ऑफ हिज लव ऑफ फूड. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. So उसने क्या किया? डिसिपल जो फॉलोवर था, उसका चेला था, उसको डांटा. स्कोल्ड करना मीन्स डांटा. And told him something in a whisper. Whisper means धीमी आवाज में, बहुत ही फुसफुसा के उसने बोला. Then he went to the king and addressed him. Addressed करना मीन्स उसको बोला. Okay, उसने किंग को जाके बोला, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? So अब उससे पूछ लिया कि भाई जो महान किंग, उसकी तारीफ कर रहा है वो. ओके, वो उसकी तारीफ कर रहा है कि जो ग्रेट किंग कौन जो है वो बड़ा है, गुरु बड़ा है या फिर जो उसका फॉलोवर है वो बड़ा है. Of course the guru, no doubt about it. सो क्या उसने डिक्लेयर कर दिया, यस द गुरु है वो ग्रेट है, वो ग्रेटर है, वो बड़ा है, और इस बारे में कोई डाउट नहीं है, कोई भी शक संदेह कुछ नहीं है. वाई डू यू आस्क? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी. सो सी, कितनी स्ट्रेंज बात है, कितनी एक बात, एक बहुत ही सरप्राइज करने वाली बात है कि गुरु जो है वो डेथ मांग रहा है. वो कह रहा है कि स्टेक पे पहले मुझे वो करो. ओके, पहले मुझे मारो,
और फिर मेरे जो ये फॉलोवर है उसको मारना। When the disciple heard this, he understood and began to clamor. So जब डिसिपल ने सुना, वो समझ गया कि अब जो गुरु कह रहा है वो करना है। पता नहीं गुरु ने कुछ कहा होगा उसे। And began to clamor. Clamor क्या होता है? It's a loud argument. Okay, वो जोर जोर से बहस करने लग गया, आर्ग्यू करने लगा, शोर मचाने लग गया। Me first, मैं पहले। You brought me here first. So पहले मैं आया हूं तो मुझे पहले। Put me to the death first, not him. So पहले मुझे मारो, ठीक है, ना कि गुरु को। The guru and the disciple now got into a fight. Who should go first? So see how strange it is, how surprising it is कि ये दोनों बहस क्यों कर रहे हैं, right? अभी तक जितने भी कोर्ट में जो लोग थे वो कोई भी मरना नहीं चाहता था, लेकिन ये गुरु और ये इसका जो डिसिपल है ये आपस में बहस कर रहे हैं मरने के लिए। ओके, ये लोग मरना चाहते हैं। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। ऑब्वियसली वो पजल हो गया, वो कंफ्यूज्ड हो गया बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर। ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई? तुम मरना क्यों चाहते हो? We chose him because we needed a fat man for the steak. हमने तो इसे इसलिए चूज किया था कि हमें कोई फैट आदमी चाहिए था, मोटा आदमी चाहिए था स्टेक के लिए। You shouldn't ask me such questions. Put me to death first. अब गुरु जो है उसने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें मुझसे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, तुम पहले अब मुझे ही मार दो। Replied the Guru. उस गुरु ने रिप्लाई किया, Why? There is some mystery here. As a wise man, you must make me understand. So King अब कह रहा है कि क्यों? यहाँ पे कुछ मिस्ट्री है, कुछ है जो पता नहीं है। उसने डिक्लेयर कर दिया गुरु को कि नहीं, पहले तुम मुझे समझाओ कि क्या मिस्ट्री है, क्या रीजन है, क्या किस वजह से तुम पहले मरना चाहते हो, पहले मुझे ये समझाओ। Will you promise to put me to death if I tell you? So उसने प्रॉमिस ले रहा है वो किंग से कि पहले क्या तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अगर तुम मुझे मारोगे अगर मैं तुम्हें बताऊंगा। Ask the Guru. The king gave him his solemn word. Solemn क्या होता है? जो सिंसियर होता है, ट्रूली, कोई हाँ मैं तो अपने दिल से बिल्कुल एकदम ऑनेस्टली मैं ये बोल रहा हूं तुम्हें। ओके, उसने प्रॉमिस दिया, एक बिल्कुल ऑनेस्ट प्रॉमिस दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, वो उसको साइड में लेके गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट। सर्वेंट्स ईयर शॉट मीन्स कि जहां तक सर्वेंट्स ना सुन ना पाए, ओके, वहां पे उसको लेके गया। एंड विस्पर्ड टू हिम, और धीरे से उसने कहा, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस? तुम्हें पता है हम क्यों मरना चाहते हैं? सो अब उसका रीजन बताना चाहते, दोनों ही क्यों मरना चाहते हैं। We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. So हमने पूरी दुनिया घूमी है। We have been all over the world means हमने बहुत सारी पूरी दुनिया देख ली है, सारे किंगडम्स देख लिए हैं हमने, ठीक है, सब जगह ही हम देख चुके हैं, लेकिन हमें सब जगह देखकर भी ऐसी सिटी नहीं मिली। ओके, गुरु अब बहुत ही इंटेलिजेंटली उसको इम्प्रेस कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है। ओके, एक स्टेटमेंट थी हमने चैप्टर के बिगिनिंग में जो पढ़ी थी, ओनली द वेरी इंटेलिजेंट कैन मैनेज द फूल्स। ओके, सो अब ये वेरी इंटेलिजेंट गुरु ये इस फूल किंग को मैनेज कर रहा है। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। ओके, सो ये जो स्टेक है ये गॉड ऑफ जस्टिस की है। इट्स न्यू, नई बनी है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इसके ऊपर कोई क्रिमिनल भी अब तक पनिशमेंट नहीं मिली क्योंकि वो न्यू स्टेक थी। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. So जो भी मरेगा वो इस कंट्री का किंग बनकर पैदा होगा। And whoever goes next will be the future minister of this country. So उसने बता दिया कि भाई ये ऐसा होगा, ठीक है, पहले जो है, जो पहले मरेगा वो किंग बनेगा, जो उसके बाद मरेगा वो मिनिस्टर बनेगा।
वी आर सिक ऑफ आर एस्केटिक लाइफ। एस्केटिक क्या होती है? संतों वाली, मतलब जो जिसमें कोई भी इन्फ्लुएंसेस नहीं होते, कोई भी अट्रैक्शंस नहीं होते, क्योंकि ये जो एस्केटिक्स होते हैं ये सारा कुछ ये अट्रैक्शंस वगैरह ये छोड़ देते हैं, ये एक नॉर्मल लाइफ में वो करते हैं जिसमें पीसफुल लाइफ इन्हें चाहिए होती है। ओके, जिसमें ये लोग किसी भी चीज़ के प्रति अपनी मन में मोह नहीं रखते, अट्रैक्शन नहीं रखते। ओके, ये संसार के कहते हैं ना सभी बंधन छोड़ के मुक्त हो जाते हैं, वो इनका था। सो वी आर सिक ऑफ आवर एस्केटिक लाइफ। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ व्हाइल। सो हमें अच्छा लगेगा कि अगर हम अब ये जो लाइफ है इससे हम ऊब चुके हैं, ठीक है, अब हमें थोड़ा टाइम किंग और मिनिस्टर बन के रहना है। ओके, हमें किंग और मिनिस्टर बन के अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड। सो अपना वर्ड रखिए माई लॉर्ड, अपना वचन रखिए। एंड पुट अस टू डेथ। ओके, और अब आप हमें डेथ दीजिए, हमें मार दीजिए। मी फर्स्ट, रिमेंबर, याद है ना कि पहले मुझे मारना है। सो द गुरु he has declared, he has told the king why he wants to die. Okay, so dear students, today we are going to read till here only. Okay, so guru है, उसने अपना प्लान डिक्लेयर कर दिया है। now when we'll read further we'll find out कि पहले कौन मरता है, गुरु मरता है या डिसिपल मरता है या फिर कोई और। okay, so whosoever that will be, we'll find out in our next class. This is your lesson for today. If you have any doubts regarding today's chapter, any words or anything else, any statement, anything, you can make comment here or you can let me know on the Kaizala app. Okay, or you can also send me a message on WhatsApp or give me a call. Okay, if you have any doubts, feel free to contact me. किसी को भी कोई भी डाउट है, मुझ कॉन्टैक्ट मी। ओके, प्लीज क्लियर योर ऑल डाउट्स राइट नाउ। अभी आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं स्टडीज में उनको अभी ही क्लियर कीजिए, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम। ओके, एग्जाम टाइम पे आप लोगों के पास बहुत कम टाइम होगा, सो बेटर टू क्लियर योर डाउट्स right now and right away. Okay, so that's our lesson for today, dear students. Thank you.